اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے اسم میں جو دوسری ڈویژن ہے مذکر اور مؤنث کی. ٹھیک ہے. تو یہ تو وہی جینڈر کے اعتبار سے اسم یعنی دو طرح کا ہے. کوئی اسم ہے جو کسی میل کے لیے یوز کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہے، جو فیمیل کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ مؤنث ہے. یہ ڈویژن اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں مذکر اور مؤنث کی. بس اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ عربی میں مؤنث کو پہچانتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے. وہ معلوم ہے کسی کو؟ چونکہ یہ عام سی بات ہے، میرا خیال ہے پتہ ہوگا اکثر لوگوں کو. سر تقریباً سر گول اس میں تاج ہوتی ہے ایس وہ. پہ تو یہ تانیث جب بھی آ جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہوں. م، ٹھیک تثنیہ ہے. جو ہے جی جی، بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یا پلیز اس مؤنث میں سے کوشش مراد. کیا کریں کہ جواب کو مختصر رکھا کریں. میں پک کر گیا ہوں آپ کی بات. ٹھیک ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جو میجر چیز ہے جو عربی میں جس سے ہم دیکھتے ہیں مذکر اور مؤنث کا فرق، وہ گولتا ہے. تو گولتا جس اسم کے اینڈ پہ ہوتی ہے وہ اسے ہم مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں. جس اسم کے آخر میں گولتا نہیں ہے اسے ہم مذکر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ سیارہ ہے یا ساعہ ہے، مدرسہ ہے. تو یہ والے الفاظ چونکہ گولتا پینٹ کر رہے ہیں تو یہ مؤنث کنسیڈر ہوں گے. اور کتاب ہے، قلم، مسجد، یہ الفاظ ہم مذکر ان کو سمجھیں گے چونکہ ان پہ آخر میں گولتا نہیں ہے. تو یہ آسان ہے. ٹھیک ہے. بس گولتا سے دیکھتے ہیں. لیکن ایسا ہے کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ گولتا نہیں ہوتی، لیکن وہ ان کے مطلب سے ہمیں ان کے میننگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جیسے کا لفظ ہے. تو چونکہ ماں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اب اس میں گولتا کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر بھی پتہ چل رہا ہے کہ چونکہ وہ اس کی میننگ ہی ایسا ہے نا کہ وہ بایولوجیکلی جیسے کوئی وہ فیمیل ہے جس کے لیے یہ لفظ یوز کیا جا رہا ہے. تو ایسے لفظوں میں گولتا نہ بھی ہو تو اس کے میننگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا لفظ مذکر ہے کون سا مؤنث. جیسے اب باپ کے لیے، ماں کے لیے، یا اخ بھائی کے لیے، اخت بہن کے لیے. اسی طرح ولد ہے لڑکا اور بنت ہے لڑکی. تو کچھ اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں کہ جو آپ کہیں کہ جو ریئل ورلڈ میں بھی دو جینڈرز جن کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر ان کی بات کریں، جو بھی لیونگ بینگز ہیں نا، تو ہم میں تو جیسے دو جینڈرز ہیں. تو وہ آپ کو کسی لفظ کا مطلب پتہ چلتا ہے تو اس سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے علاوہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ باقی لفظوں میں جیسے کوئی بے جان چیزیں ہیں. اب کتاب ہے، قلم ہے، گھڑی ہے، دروازہ ہے. ان لفظوں میں پھر گولتا سے ہم پہچان کرتے ہیں. اگر گولتا ہے کسی اسم پہ تو مؤنث ہے، گولتا نہیں ہے تو مذکر سمجھیں گے. جیسے مثال کے طور پہ یہ دیکھیں کہ اب مسلم ہے، بولتا نہیں آ رہی تو یہ مذکر کنسیڈر ہوگا. مسلمہ مؤنث ہے. صادق صادقہ، کاذب کاذبہ، جالس جالسہ، مدرس مدرسہ، کاتب کاتبہ، مجتہد مجتہدہ، واقف واقفہ. اسی طرح کچھ اور لفظ جو میں نے بولے تھے، مدرسہ ہے یا ساعہ ہے جو گھڑی کے لیے بولتے ہیں، یا سیارہ ہے جو گاڑی کے لیے. تو اس طرح کی بے جان چیزوں میں بھی ہم پھر گولتا سے تمیز کرتے ہیں. گولتا جس لفظ کے اینڈ پہ ہے اس کو ہم مؤنث کنسیڈر کریں گے، اور جہاں گولتا نہیں ہے اسے مذکر کہیں گے. کلیئر ہے جی؟ اچھا، یہ جو گولتا ہے جانتا ہے. اس کو تائے مدورہ بھی کہا جاتا ہے. یہ اس کا نام یہاں لکھا ہوا ہے. تائے مدورہ بھی بولتے ہیں اور اس کو تائے مربوطہ بھی بولتے ہیں. تو اگر آپ کبھی کسی بک میں ان میں سے کوئی ٹرم پڑھیں، تائے مربوطہ یا تائے مدورہ، تو اس کا مطلب یہی گولتا ہے. یہ میں تائے مربوطہ جو ہے نا، میں چیٹ میں لکھ رہا ہوں کہ اس کو کیسے لکھنا ہے. مربوط ہوتا ہے نا جیسے، اسی پہ بس مربوط کے آخر میں ہے آ جائے گی. تائے مربوطہ یا تائے مدورہ، یہ گولتے کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ سمجھ گئے کچھ تو یعنی لفظ ایسے ہیں جیسے جو لیونگ بینگز کے لیے یوز ہوتے ہیں ان میں تو مذکر مؤنث ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے مطلب سے نا. باقی لفظوں میں پھر ہم گولتا جو ہے اسی سے جج کرتے ہیں. جس اسم کے اینڈ پہ گولتا ہے وہ مؤنث ہے، جہاں گولتا نہیں ہے وہ مذکر ہے. صحیح ہو گیا جی؟ اب بس اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا، کچھ
ऐसे इसम हैं अरेबिक में जिनमें गोलता नहीं यूज होती, लेकिन फिर भी वो लफ्ज मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। वो फिर आप लफ्ज याद करेंगे कि इन लफ्जों को हम मुअन्नस लाएंगे जब भी ये अरबी में इस्तेमाल होंगे। तो वो उन लफ्ज जो मशहूर लफ्ज हैं उनकी जी लिस्ट नीचे गिवन है, वो मैं बता देता हूँ आपको। जी, कोई सवाल है? जी, शम्स का वर्ड मेरे जहन में आया था कि शम्स भी है मोनस। जी जी। हाँ, तो वो कुछ लफ्ज मैं बता रहा था कि जिनमें गोलता नहीं है फिर भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, तो वो आप टाइम के साथ साथ जैसे याद करेंगे। उनमें से जो कुछ मशहूर लफ्ज हैं वो यहाँ गिवन है, जैसे शम्स, अर्द, हर्ब, नार, नफ्स, समा, यद, रिजल। ये जितने भी लफ्ज यहाँ लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, ये सब मुअन्नस यूज होते हैं, हालांकि इन पे गोलता नहीं है। ठीक है। ठीक है जी, तो इसका क्या है लुबे लुबाब, मुजक्कर और मुअन्नस में कैसे फर्क करते हैं? हम्म। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही? सर ताय मर्द जिस इसम के सर। आखिर में ताई मुदव्वर आ जाए तो वो मुअन्नस होगा, और जिस इसम के शुरू में आखिर में ये इन में ये नहीं है तो फिर ये मुज़क्कर है। हाँ, लेकिन बस ठीक बाज है। वर्ज हम्म। जो हम्म। आखिर में मुदव्वरा भी नहीं है लेकिन फिर भी ये मुअन्नस शुमार। सर एक ताय तानीस भी होती है ना, इसकी इस्तेमाल के लिए आती है मोनस के लिए। क्या जी, दोबारा बात कीजिएगा। ताय तानीस बोलते हैं मोनस की निशानी के तौर पर। इसी को ताय तानीस भी कहते हैं। ठीक है। जी, लेकिन ताय तानीस इसके अलावा भी होती है, ठीक है, वो हमेशा गोलता नहीं होती, वो और जगहों पे भी वो लफ्ज बोला जाता है। जी, आपका यार नाम। जैसे अनामता वाला। नहीं नहीं भाई, सर वो जी। आएगी तो मैं बता दूंगा, अभी जो चीज पढ़ी नहीं है बस उस तरफ नहीं जाना, ठीक है। मैंने पहले दिन ही ये गुजारिश की थी कि बस जो चीजें पढ़ेंगे सिर्फ उन पे हम रहेंगे, आगे की चीजें अभी नहीं करनी डिस्कस। इस सरफर हाफिज, ये लारेब है, जी लहरासिब जी। सरफराज, यार मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा। लहरासिब सरफराज शेख। लहरासिब, अच्छा, मेरे इल्म में पहली दफा है ये नाम। जी जी, फरमाइए। जी शेख, ये कहना था कि जब आप सवाल यानी जवाब पूछते हैं तो सारे एकदम बोलना शुरू है। बेहतर नहीं है कि राइज हैंड किया जाए, आप खुद पूछें किसी एक से। मैं तो ये बात मल्टीपल टाइम्स पे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, बहरहाल कोशिश करता हूँ कि इसका ख्याल रखें। शुक्रिया। सही है। अच्छा, जी जी। फराज बशीर कह रहे हैं शम्स इज समटाइम्स अ मैस्कुलिन नेम टू, हाउ डू वी एड्रेस हिम इफ इट्स नॉट हर? शम्स आप जो कह रहे हैं कि नाम के तौर पे समटाइम्स रखा जाता है, हमारे यहाँ जैसे कॉमन है इंडिया पाकिस्तान में कि लड़कों का नाम रखते हैं शम्स, तो वो तो ठीक है, वो लड़के का नाम है तो मुजक्कर ही इस्तेमाल होगा वहां पे, ठीक है। लेकिन वैसे मतलब शम्स जब आप सूरज को रेफर करते हुए बोलेंगे तो उसको अरबी में मुअन्नस बोलेंगे। चलें जी, ठीक है, तो क्रक्स इसका यही है कि गोलता जिस इसम के एंड पे है वो मुअन्नस है, और जहाँ गोलता नहीं है वो मुजक्कर है। और इसकी एक्सेप्शंस में हैं कुछ लफ्ज, जैसे शम्स, अर्द, हर्ब, नार, ये गोलता नहीं होती इनमें लेकिन फिर भी ये मुअन्नस यूज होते हैं। इन लफ्जों को आप याद कर लेंगे, वो मैं लिस्ट आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये वाले जो अल्फाज हैं जिनमें गोलता नहीं है, यानी अलामत नहीं है मुअन्नस की लेकिन ये मुअन्नस हैं, इनको हम कहते हैं मुअन्नस समाई। ठीक है। मुअन्नस समाई, समाई का मतलब क्या है? ये समा से है ना, सुनने से। तो मुअन्नस समाई वो है कि जिसको बस आपने सुना है कि मुअन्नस यूज किया जाता है, इसके कोई रूल नहीं है। तो इसके अगेंस्ट जिस लफ्ज के एंड पे गोलता आ रहा हो उसको हम मुअन्नस क़यासी कहते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं, ये मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने पास नोट कर लें, क्योंकि ये हम अक्सर सर्फ में भी और नहव में भी बार बार ये दो टर्म्स पढ़ते हैं कि ये चीज क़यासी है, ये चीज समाई है। कयास का मतलब होता है कोई चीज मैयर करना, किसी दूसरी चीज से नापना। तो
قیاسی جب بھی اگر آپ پڑھیں گے گرامر میں کہیں پہ بھی یہ والی ٹرم، تو اس کا مطلب ہوگا کہ قیاسی وہ شے ہے جس کا کوئی اصول ہے، جو کسی ایک سیٹ رول کے مطابق بیہیو کر رہا ہے، وہ چیز قیاسی ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کو آپ دوسروں پہ قیاس کر سکتے ہیں، اس چیز کو آپ میئر کر سکتے ہیں یا دوسری جگہوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور سماعی کون سی چیز ہوگی؟ جس کا کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو جسٹ آپ نے یعنی آپ جو لفظ آپ نے سن رکھے ہیں کسی ان کا کوئی اسپیسیفک یوزیج، تو بس آپ ان کو ویسا یوز کریں گے، لیکن وہ جینیرک رول نہیں ہوگا. کلیئر ہے یہ بات؟ تو یس قیاسی سر. کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کا کوئی اصول ہوتا ہے، اور سماعی کہتے ہیں ان باتوں کو جن کا کوئی اصول نہیں ہوتا، انہیں ہم یاد کرتے ہیں صرف. ٹھیک ہے، وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ. لیکن قیاسی وہ چیز ہے جس کا کوئی جنیرک رول ہوتا ہے جو ہر جگہ اپلائی ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ مؤنث جس کے اینڈ پہ گولتے آ رہی ہے وہ مؤنث قیاسی کہلاتی ہے، چونکہ اس کو ہم ایک ایک رول کے تحت مؤنث کہہ رہے ہیں نا. وہ رولنگ کیا ہے ہمارے پاس؟ گولتا کا ہونا. تو جس اسم کے اینڈ پہ ہم گولتا دیکھیں گے وہ ہم کہہ دیں گے کہ جی یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک رول کے تحت مؤنث ہوا ہے، اس لیے قیاسی ہے. وہ سماعی وہ ہے جس پہ کوئی رول اپلائی نہیں ہوگا. یہ کچھ انڈیویجل لفظ ہوں گے جو آپ کو یاد کرنے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ ویسے بھی یعنی جیسے مؤنث کے ساتھ ہم بول رہے ہیں نا، مؤنث سے قیاسی یہ سماعی، آگے چل کے آپ بار بار یہ لفظ پڑھیں گے، یہ چیز قیاسی ہے، یہ چیز سماعی ہے. اچھا جی. دوسرا اس کے بعد آپ ہے موضوع جو ایک اور تقسیم ہے اس میں، واحد، تثنیہ اور جمع کی. یہ اب ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیسے جینڈر میں اسم دو طرح کا ہے، یا وہ واحد مذکر ہے یا مؤنث. تو نمبر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اسم عربی میں تین طرح کا ہوتا ہے. ایک لفظ ہے جو واحد کے لیے آتا ہے، دوسرا لفظ تثنیہ کے لیے، اور تیسرا جمع کے لیے. تو جنرلی ہم لوگ جیسے اردو میں واحد اور جمع پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں ان کے علاوہ بیچ میں تیسرا لفظ بھی ہوتا ہے، تثنیہ. واحد تو معلوم ہے کہ یہ وہ اسم ہے جس سے مراد ایک شے ہوتی ہے، کسی ایک چیز پہ دلالت کرتا ہے. تثنیہ وہ ہے جو دو کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ تثنیہ کچھ اردو میں بھی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں عیدین. تو عیدین کا مطلب دو عیدیں، یہ جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اسی طرح فریقین یوز کرتے ہیں، دو پارٹیز، یا طرفین یوز کرتے ہیں، دو سائڈز، یا والدین یوز کرتے ہیں، والد اور والدہ دونوں کے لیے. تو جو اس طرح کے لفظ ہیں جو اسپیسیفکلی دو کے لیے بولے جاتے ہیں، جن سے مراد دو چیزیں ہیں، ان کو ہم تثنیہ کہیں گے. اور جمع جو ہے وہ عربک میں سٹارٹ ہوتی ہے تین سے آنورڈز جو ہے وہ جمع ہے. ٹھیک ہے، تو واحد ایک کے لیے ہے، تثنیہ دو کے لیے ہے، اور جمع تین یا تین سے زیادہ کے لیے ہے. جو واحد ہے اس کے لیے سم ٹائمز آپ کو ایک اور ٹرم بھی ملے گی، کچھ بکس میں اس کو مفرد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں چیٹ میں لکھ رہا ہوں. تو اس کے لیے مفرد کا لفظ بھی یوز کیا جاتا ہے. تو اگر آپ مفرد پڑھیں تو اس کا مطلب بھی واحد ہے، سنگولر. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی سر. تو مفرد اگر آپ پڑھیں تو اس کا مطلب بھی وہ ایک ہی ہے. اسی طرح جو تثنیہ ہے اس کو سم ٹائمز ہم مثنیٰ بھی کہتے ہیں. مثنیٰ یا تثنیہ اس سے مراد یعنی وہ اس میں جو دو کے لیے بولا جاتا ہے، اور جمع وہ ہے جو تین کے لیے استعمال ہوتی ہے. ان یہ ٹرمز کے میننگ کلیئر ہو گئے تو آگے چلیں. ان کو ہم پہچانتے کیسے؟ کون سا لفظ واحد ہے، کون سا تثنیہ اور کون سا جمع؟ جی سر. جی شیخ. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، اسم جو ہے بائی ڈیفالٹ ہم ہر اسم کو واحد سمجھیں گے. جو بھی اسم ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ واحد ہے. اور اگر تثنیہ ہے تو تثنیہ میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسپیسیفک کچھ اس میں حرف ہوتے ہیں جو اینڈ پہ ایڈ کیے جاتے ہیں تثنیہ بنانے کے لیے. اسی طرح جمع جو ہے، جمع میں بھی کچھ خاص ایڈیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویسے بائی ڈیفالٹ ہر اسم واحد ہے جب تک اس میں کوئی چیز ایڈ نہ کی جائے. ٹھیک ہے.
تو واحد کو تو اس طرح سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس کا کوئی اصول نہیں ہے نا. تثنیہ اور جمع کو ہم پڑھیں گے. تو جو لفظ تثنیہ یا جمع نہیں ہوگا وہ پھر ظاہری بات ہے وہ واحد. تو سب سے پہلے تثنیہ کو ڈسکس کرتے ہیں. تثنیہ جو ہے یہ اس کا ایک ہی رول ہے سمپل کہ کوئی بھی واحد اسم جو ہے اس کے اینڈ پہ الف اور نون ایڈ کرنے سے تثنیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, الف ایڈ کر دیں کسی بھی واحد اسم کے آخر میں اور نون ایڈ کر دیں. الف پہ تو ظاہری بات ہے کوئی حرکت نہیں ہوتی. نون جو ہے اس پہ کسرہ آئے گی. کسرہ یعنی زیر. تو الف اور نون مکسور یعنی ایک زیر والا نون ایڈ کرنے سے تثنیہ بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ قلم جو ہے وہ سنگولر ہے تو قلمانی جو ہے یہ دو قلم کے لیے یوز کیا جائے گا. اسی طرح کتاب اگر میں کہتا ہوں تو اس سے مراد ایک کتاب ہے اور کتابانی دو کتابیں ہیں. رجل ایک آدمی ہے, رجولانی دو آدمی ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی جو سنگولر ناؤن ہے اس کے اینڈ پہ الف نون ایڈ کریں تو تثنیہ بنتا ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ مدرسہ تو دو سکولز ہیں تو مدرسہ ثانی. ٹھیک ہے, ایک گاڑی ہے تو سیارہ, دو گاڑیاں ہیں سیارہ ثانی. ٹھیک ہے جی. تو تثنیہ جو ہے اس میں ہم کیا جی ایڈیشن کرتے ہیں, واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور یعنی زیر والا نون ایک ایڈ ہوگا اور الف. اچھا, اب سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو الف میں بول رہا تھا کبھی کبھار ہم الف کی بجائے یہ بھی بولتے ہیں تثنیہ میں. یعنی جیسے ابھی میں نے جو اگزامپلس دی تھی ان میں ہم قلمانی, رجولانی, سیارتانی یوز کر رہا تھا. ان میں ہم الف کی جگہ کبھی یا بھی یوز کر لیتے ہیں. تو قلمینی, رجولینی, سیارتینی, ساعتینی یوں بھی آ سکتا ہے تثنیہ. ٹھیک ہے, تو اس کے جیسے دو ویریشنز ہیں تثنیہ میں. الف اور نون بھی اینڈ پہ ہو سکتا ہے اور سم ٹائمز یا نون بھی ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ دونوں چیزیں لکھ لیں اپنے پاس کہ تثنیہ واحد میں الف نون یا نون کے اضافے سے بنتا ہے. اگین الف پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی, یا پہ بھی کوئی حرکت نہیں ہوگی, یا بھی ساکن ہوگا. اور نون پہ کیا حرکت آئے گی, نون پہ کسرہ ہوگی, زیر. مقصور. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ دو قلم ہیں تو قلمانی بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور قلمینی بھی یوز ہو سکتا ہے. اسی طرح دو آدمی ہیں تو رجولانی, رجولینی, کتابانی, کتابینی. تو اس میں آپ کے وہ آگے ہم چل کے ڈسکس کریں گے کہ کہاں الف یوز ہوتا ہے اور کس کیس میں یا یوز ہوتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی فارم آ جائے تو وہ ہے تثنیہ ہی ہے. ٹھیک ہے, الف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, یا کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. وہ آگے ڈسکس کریں گے کہ کب الف آتا ہے اور کب یا آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپلس دیکھ لیں ایک دفعہ. جیسے یہ دیکھیے گا کہ کتاب ایک ہے اور دو کتابیں اگر کہنا ہے تو کتابانی یا کتابینی. اسی طرح قلم سے قلمانی یا قلمینی. رجل, رجولانی یا رجولینی. عین ایک آنکھ ہے, دو آنکھیں ہیں تو عینانی یا عینینی یوز ہو سکتا ہے. ید, یدانی یا یدینی دو ہاتھ. اسی طرح امرأة ایک خاتون ہے اور امرأتانی یا امرأتینی دو خواتین ہیں. تو الف نون یا نون دونوں فارمز ہو سکتی ہیں. ان دونوں میں سے کون سی کب کہاں یوز ہوگی وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. فی الحال بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر سنگولر کے اینڈ پہ آپ کبھی الف نون یا نون دیکھیں تو وہ اسم تثنیہ ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی اس میں دو کا میننگ آ رہا ہوگا. ایک کوشچن آیا ہے کہ why it is unique that specific ism in Arabic or what's the logical reason behind it. اچھا, کوئی اس کے پیچھے کوئی لاجیکل ریزن تو نہیں ہے کہ عربی میں دو کے لیے الگ لفظ کیوں یوز ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں اردو میں ہے کہ واحد ایک ہے اور بس دو یا اس سے زیادہ جمع ہے, یا انگریزی میں بھی اسی طرح ہے. تو عربی میں ایسا کیا ہے کہ ڈوئل کو الگ حیثیت دی گئی ہے. اس کی کوئی لاجیکل ریزن ویسے بتانا مشکل ہے. مطلب میں نے اب تک نہیں دیکھا کہ کسی لنگوسٹ نے اس پہ بات کی ہو.
लेकिन ये है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस में ये फिनोमिनन और जगहों पे भी मिलता है, ये सिर्फ अरबी में नहीं है। और भी कई कदीम ज़बानें ऐसी हैं जिनमें दो के लिए अलग लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, और फिर जमा जो है वो तीन से या उससे ज़्यादा के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो वो मेरा ख्याल है ज़बान के यूजेज पे ही है कि उस ज़बान में उस चीज़ का रिवाज कैसे पड़ा, तो इसके पीछे कोई मेरा नहीं ख्याल कोई रीजनिंग है। और दूसरा ये कि इस्तेमाल अरबी में भी इसका कम है, मतलब ज्यादा तो या वाहिद या जमा यूज होता है। तस्निया जो है निस्बतन कम आता है, क्योंकि ऐसे वैसे भी सिचुएशंस कम होती हैं जहाँ स्पेसिफिकली दो ही चीजों की बात हो रही हो। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि इसम जो है वो वाहिद है अरबी में या तस्निया या जमा। तस्निया हम पढ़ चुके हैं कि ये वाहिद में अलिफ नून या नून के इजाफे से बनाते हैं, और अलिफ नून या नून में से कब कौन सी वाली सिचुएशन यूज होगी वो आगे चल के पढ़ेंगे। बहरहाल दोनों में से कोई भी फॉर्म अगर आ जाए तो वो तस्निया है। इसके बाद आगे जमा डिस्कस कर लेते हैं। जमा जो है वो अरबी में दो तरह की होती है। एक जमा है जो वाहिद में हम कुछ एडिशन करके बनाते हैं, यानी जो वाहिद वाला लफ्ज है उसी में कोई हर्फ ऐड किए और जमा बन गई। जैसे अभी तस्निया में अलिफ नून ऐड किया था तो तस्निया बनाया था। तो जमा में भी कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनकी जमा किसी इजाफे से बनती है। ठीक है। ऐसी जमा को हम जमा सालिम कहते हैं। जैसे सालिम का मतलब ये है कि उसमें जो सिंगुलर है उसका पैटर्न या उसका स्ट्रक्चर खराब नहीं होता ना, वो सालिम रहता है, यानी बचा रहता है। जैसे सही सालिम बोलते हैं, तो उसी तरह है कि मिसाल के तौर पे फर्ज करें अगर मुस्लिमून है तो मुस्लिम में ही वाव नून ऐड करके मुस्लिमून की जमा बनाई गई है। या मोमिनीन हम जब यूज करते हैं तो मोमिन ही में या नून ऐड हुआ है। या इसी तरह मोमिनात है तो मोमिन में ही अलिफ का ऐड हुआ है। तो ऐसी जो जमा होती है जो सिंगुलर में किसी इजाफे से बनती है उसे जमा सालिम कहते हैं। और दूसरी जमा होती है जो जरा सिंगुलर से डिफरेंट होती है, ये किसी इजाफे से नहीं बन रही होती, बल्कि इसमें वाहिद का लफ्ज मुख्तलिफ होता है, जमा का लफ्ज उससे मुख्तलिफ आता है। यानी जमा बनाते हुए समटाइम्स कोई हर्फ हम ज्यादा कर देते हैं, कभी कुछ हर्फ कम करते हैं, कभी हरकत चेंज करते हैं। तो जो वाहिद का स्ट्रक्चर था वो वैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। ठीक है। इसलिए हम इसको जमा मुकस्सर कहते हैं, क्योंकि मुकस्सर का लिटरल मीनिंग होता है टूटा हुआ। तो ये जमा मुकस्सर है कि जिसमें वाहिद की शक्ल टूट जाती है जब वो जमा बनता है। ठीक है। मसलन किताब है सिंगुलर, तो इसकी जमा हम करते हैं कुतुब। तो किताब एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, कुतुब का बिल्कुल स्ट्रक्चर उससे मुख्तलिफ आ रहा है। रजुल की जमा हम बनाते हैं रिजाल। नबी की जमा अंबिया। आलिम की जमा उलमा। तो इन सब जमों में अगर आप देखें तो वो अपनी वाहिद से डिफरेंट है। ठीक है। आलिम उलमा नबी अंबिया किताब कुतुब। इसी तरह मिसाल के तौर पे रजुल है और रिजाल अमल आमाल। तो सिंगुलर का वर्ड डिफरेंट है, जमा का वर्ड उससे मुख्तलिफ है। और दोनों में कोई ऐसा एक रूल नहीं है कि कोई खास इजाफा करके हमने जमा बनाया हो। वाहिद और तरह का है, जमा और तरह का। तो जो इस तरह की जमा है उसको हम जमा मुकस्सर कहते हैं। और इसका कोई एक उसूल नहीं होता, ये कयासी नहीं होती। अब आप समझ गए ना कि ये कयासी नहीं है। कयासी किसे कहते हैं? जिस चीज का कोई एक उसूल बता सकते हो। तो जमा मुकस्सर जो है वो कयासी नहीं है, यानी किसी वाहिद का जमा क्या होगी ये चीज भी समाई है। आपने आहिस्ता आहिस्ता ये जमा के लफ्ज याद कर, जैसे अमल आपको पता है कि उसकी जमा अमाल है, या रसूल की जमा रसुल है। तो इसी तरह वर्ड बाय वर्ड आप इसको सीखेंगे साथ साथ। ये वाली जमा तो समाई होगी या आप याद करेंगे, जमा मुकस्सर जो है। अब आपने जिस पे इस वक्त फोकस करना है वो है जमा सालिम। ठीक है। जमा सालिम वो है जो सिंगुलर में किसी इजाफे से हम बनाते हैं। और ये फर्दर फिर आगे दो टाइप्स की होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है? जमा सालिम और जमा मुकस्सर का फर्क वाजे हो गया? जी सर, जी बिल्कुल। शेख। यस सर। यही है, यासिर साहब हैं कि नहीं है? यासिर साहब तो नहीं है। सर जमा अख्तर का जी। दोबारा बता देंगे, मैंने अभी
जी किसका? जमा मकसर साल के बाद। हाँ, जमा मुकस्सर। मुकस्सर वो जमा है जो अपने सिंगुलर से डिफरेंट है, यानी जिस सिंगुलर की फॉर्म और है, और जमा जो है उसका स्ट्रक्चर उससे मुख्तलिफ है। तो यानी अब वाहिद में कुछ हम ऐड करके जमा नहीं बना रहे होते, बल्कि डिफरेंट पैटर्न्स पे ये जमा बनती है जो हम वक्त के साथ साथ याद करते हैं। जैसे अमल की जमा आमाल आप कर रहे हैं, खबर की जमा अखबार कर रहे हैं, कल्ब की जमा कुलूब करते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे कबीर की जमा किबार करते हैं, सदीक की जमा अस्तिका करते हैं, मस्जिद की जमा मसाजिद करते हैं। तो ये वाली जो जमे हैं जिनमें वाहिद और है, जमा का लफ्ज और है, इसे हम जमा मुकस्सर कहते हैं। ठीक है, शेख साहब, ये जो वाहिद तालमून में का किसी इजाफे से नहीं बनती। मैं तालमून फिर का वही वाहिद रिक्वेस्ट कौन करूंगा, सा होता प्लीज सवाल करने से पहले ना वो हैंड रेज कर लिया करें, उसमें आसानी रहती है। जी अब पूछिएगा, कौन सा आप थे? सज्जाद साहब जी। सर, आसान लफ्जों में सालिम उसको कहते हैं जो मुफरद से जमा बनाते वक्त जिसकी असल ना टूटे। जी जी, ये सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही बात। और हम्म। सर, मुकस्सर जो है वाहिद से जमा बनाते वक्त उसकी असल टूट जाए। जी बिल्कुल ठीक है, यही है। ठीक है सर। जी, सब पहले भी आप ही सवाल कर रहे थे? ओके, नहीं सर, अभी तो चले नहीं। किसी का और सवाल है तो कर ले। मतलब सवाल के लिए जरा पहले वो हैंड रेस कर लिया करें ना, या एंड पे जब मैं पूछता हूँ उस वक्त आपको मैं टाइम तो देता ही हूँ ना, मेरा ख्याल है हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी करने के बाद एक दफा पूछता जरूर हूँ कि क्लियर हुआ है नहीं, उस टाइम कर लिया करें। जब वो बात हो रही होती है ना, बाज दफा उसमें बीच में फ्लो टूट जाता है सवाल करने से, वो मतलब मेरी भी उसमें तवज्जो नहीं रह जाती, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी हर्ज होता है कि वो सारों की तवज्जो इस पे होती है जो गुफ्तगू चल रही है, अचानक से कहीं से एक आवाज आती है और वो मतलब वो सारा फोकस इधर उधर हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, वो फिर नए सिरे से बात शुरू करनी पड़ती है। तो इसका ख्याल करें, इस वजह से वक्त पे बहुत जाया होता है। चलें, अभी तो जरा नया नया है ना, तो इसलिए कुछ दिन अभी वो आपको लगेगा। बहरहाल इन चीजों की आदत डालें अभी से। ये वैसे भी मतलब कोई भी हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं या ऑनलाइन कहीं पे भी, तो वो आदाब के खिलाफ है ना कि ऐसे ही बोलना शुरू हो जाए। हम्म। चलें जी, तो जमा दो तरह की है। जो जमा वाहिद में इजाफे से बनाते हैं वो जमा सालिम है, और जो जमा वाहिद से मुख्तलिफ बनती है, नहीं उसकी शक्ल वाहिद से डिफरेंट है, वो जमा मुकस्सर है। इसमें कोई इजाफा नहीं होता, इसमें सम डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट पैटर्न्स पे ये जमा बना करती है। जमा सालिम को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपका फोकस इस पे होना चाहिए। ये आप सीख सकते हैं क्योंकि इसका एक ही उसूल है। जमा मुकस्सर जो है वो तो टाइम के साथ साथ आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपको वोकैब सीखनी है, तो वोकैब में ये शामिल है कि आपको वाहिद जमा भी आने चाहिए। तो इस वक्त आपका फोकस इस पे होगा, जमा सालिम पे। ठीक है, ये भी दो तरह की होती है। एक है जिसे हम जमा मुजक्कर सालिम कहते हैं, दूसरा है जिसे जमा मुअन्नस सालिम कहते हैं। ठीक है जी। तो जमा मुजक्कर सालिम जो है, ये वाहिद में वाव नून के इजाफे से बनाते हैं या नून के इजाफे से। तो वाहिद के एंड पे अगर आप वाव और नून ऐड करें, वाव पे कोई हरकत नहीं होगी, वाव साकिन होगा, और नून पे फतहा बोलेंगे यानी जबर आएगा। तो वाव और नून मफ्तू के इजाफे से ये जमा बनती है। जैसे मुस्लिम तो मुस्लिमूना, मुदर्रिस मुदर्रिसूना, ताजिर ताजिरूना, आलिम आलिमूना। ठीक है, सादिक सादिकूना। तो ये वाली जो जमा है जो आपने सिंगुलर में वाव नून ऐड करके बनाई है, ये जमा मुजक्कर सालिम कहलाती है। ठीक है, तो इसमें वाहिद के आखिर में वाव और नून का इजाफा करते हैं, वाव साकिन और नून मफ्तू यानी जबर के साथ ऐड किया जाता है। तस्निया में जो हमने नून ऐड किया था, उस नून पे हम क्या बोलते थे? सर, कसरा।
उसमें कसरा आती है, लेकिन ये जो जहाँ जमा मुज़क्कर सालिम का नून है इसमें फतहा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी दो वेरिएंट्स हैं, जैसे हमने तस्निया में भी डिस्कस किया था कि कभी अलिफ नून होता है और कहीं या नून होता है, तो जमा मुज़क्कर सालिम में भी कभी वाव नून आएगा, इसी तरह कहीं वाव की बजाय या भी यूज किया जाता है कि या साकिन और उसके बाद नून मफ्तूह। ठीक है, तो मुस्लिमूना भी इस्तेमाल हो सकता है और मुस्लिमीना, मुमिनूना, मुमिनीना, सादिकूना, सादिकीना, आलिमूना, आलिमीना, ये दोनों लफ्ज जमा मुज़क्कर सालिम। क्लियर? जी। जी यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरा है जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम वाहिद में अलिफ ता ऐड करके बनाते हैं, और इसमें कोई फर्दर वेरिएशन नहीं है, वो अलिफ ही है, अलिफ ता ही ऐड होता है, यानी ऐसा नहीं है कि कभी वाव ता आ जाए या कभी या ता आ जाए, हमेशा वाहिद के आखिर में अलिफ ता ही इस्तेमाल होता है जमा मुअन्नस सालिम में। जैसे मुस्लिम से ही मुस्लिमात, मोमिन से मोमिनात, सादिक से सादिकात, आबिद आबिदात, मुदर्रिस मुदर्रिसात। ठीक है, तो अलिफ ता के इजाफे से जो जमा बनती है उसे जमा मुअन्नस सालिम कहते हैं, और वाव नून या नून के इजाफे से जो जमा बनती है वो जमा मुज़क्कर सालिम। जी लहरा सिब, यार एक दफा फिर प्रोनाउंस कीजिएगा, क्या नाम आपने बताया था? लहरासिब सरफराज। लहरासिब सरफराज, जी लहरासिब। जी जी, सवाल है ना आपका कुछ? या के साथ बनाया है, तो तो हमने ये था ना कि या से पहले जबर लेके आए हैं, तो क्या मुस्लिम मीना यानी जमा में हम या से पहले जेर लेके आएंगे? हाँ, ये अच्छा है, ये ये थोड़ा, ये किस बिल्कुल तरह सही, इराब किस तरह आएगा मसलन? बेहतरीन हो गया। अ, जी तस्निया में जब हमने अलिफ और नून ऐड किया था, तो अलिफ से पहले तो हमेशा पिछले हर्फ पे जबर होता है ना, अलिफ से पहले तो जबर के अलावा और कोई हरकत नहीं आ सकती। ठीक है, जी तो जी जो शेख। अलिफ नून हमने ऐड किया था, तो अलिफ पे कोई हरकत नहीं है, नून पे कसरा है, और अलिफ से पिछले हर्फ पे जबर है, जैसे कलमानी, दो कलम। ठीक है, तो फिर हम जब या यूज करते थे तस्निया में, तो उधर या से पहले भी वही जबर ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कला जी मईनी, तो यहाँ या साकिन है तो या से पहले जबर है और नून पे जेर आ रही है। ये तो था तस्निया का। जमा जी मुजक्कर सालिम में जब आप वाव ऐड कर रहे हैं, तो वाव से पहले पेश पढ़ते हैं, जैसे मुस्लिमूना, तो वाव से पिछले हर पे पेश है, सादिकूना। और अगर आप या यूज कर रहे हैं तो या से पहले आप जेर इस्तेमाल करें, इसमें जबर जी किसी भी केस में नहीं आएगा। तस्निया में यानी अलिफ नून या नून से पहले जबर होता है लास्ट लेटर पे, लेकिन जमा में वाव से पहले पेश, और अगर या यूज किया आपने तो या से पहले जेर। जी सर, क्लियर शेख। क्लियर है? अब एक दफा फिर जी देख लें, जी कि जब हम तस्निया में ऐड करते हैं अलिफ नून या नून, अलिफ और या तो होते हैं साकिन, नून पे हरकत होती है कसरा, और अलिफ और या से पहले वाला जो हर्फ है उस पे बोलते हैं जबर। ठीक है, जैसे कलमानी, कलमैनी, रजुलानी, रजुलैनी, किताबानी, किताबैनी। जमा की हम बात करें तो इसमें वाव और या साकिन होते हैं, नून की हरकत डिफरेंट है, नून तस्निया में जेर के साथ था, यहाँ पे जबर के साथ आएगा, जमा में नून पे फतहा है। ठीक है, वाव या साकिन, लेकिन नून पे फतहा है, और वाव से पहले वाले हर्फ पे पेश बोलते हैं, या से पहले वाले हर्फ पे जेर बोलते हैं, तो मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, सादिकूना, सादिकीना, मुदर्रिसूना, मुदर्रिसीन। क्लियर है? जी शेख। तो इसमें अच्छा है, खासतौर पे जो या वाला केस है ना वो कंफ्यूज करता है, उसमें गलती का इम्कान है, क्योंकि या जमा में भी आ रही है और या तस्निया में भी आ रही है। तो आपने एक तो या से पहले वाले हर्फ को देखना है, अगर या से पहले जबर है तो वो तस्निया होगा या जमा? वो तस्निया होगा। तस्निया है। और अगर या से पहले जेर है तो वो जमा है। तो वो जमा होगा। ठीक है, इसी तरह नून की हरकत भी डिफरेंट है, तस्निया में जी। नून पे जेर है और जमा के केस में नून पे और जबर है। तो अगर किसी जुमले में आप पढ़ते हैं मुस्लिमैनी,
تو वहाँ कितने मुसलमानों की बात हो रही है? दो, दो। दो की। दो मुसलमान। और मुस्लिमीना, जी, इसमें तीन से आगे जितने भी हाँ हो। ज्यादा मुसलमान, ये जमा है, ठीक है। हाँ जी। इसी तरह मसलन आप कुरान में अक्सर पढ़ते हैं खालिदीन फीहा, खालिदीन फीहा या खालिदीन फीहा अबदा। तो खालिदीना तस्निया या जमा है? ये जमा है। जमा है। और एक जगह कुरान में आया खालिदैन फीहा, वहां कितने लोगों की बात हो रही है? दो। वहां पे तस्निया है तो दो की वहां बात होगी। तस्निया है, ठीक है। तो खालिदीना अगर आया है तो जमा, खालिदैनी वो तस्निया है। क्लियर जी? जी। हर जी एक की जज़ाकल्लाह हरकत साहब। वगैरह होगी वहां से? जी जी सर। चले, जी जी अच्छी सर। बात है। तो एक दफा फिर देख लें। जमा हमने कहा कि अरबी में दो तरह की होती है। एक वो जमा है जो हम वाहिद में ही कुछ हर्फ ऐड करके बनाते हैं, उसे हम कहते हैं जमा सालिम। और दूसरी वो जमा है जो जमा मुकस्सर कहलाती है, जो किसी एक खास इजाफे के तहत या किसी खास उसूल के तहत नहीं बनती, ये जमा हम याद करते हैं, ठीक है। तो जमा सालिम आगे फिर हमने पढ़ा कि वो भी दो टाइप्स की है। एक है जिसे हम जमा मुजक्कर सालिम कहते हैं, इसमें वाहिद में इजाफा होता है वाव नून का या या नून का, ठीक है। वाव साकिन या भी साकिन और नून पे फतहा है, नून मफ्तू होगा। और वाव से पहले वाले हर्फ पे जम्मा है, या से पहले वाले हर्फ पे कसरा है। तो मुस्लिमूना या मुस्लिमीना ये है जमा मुजक्कर सालिम। और दूसरी जमा है जो जमा मुअन्नस सालिम, ये वाहिद में अलिफ ता के इजाफे से बनाते हैं, जैसे मुस्लिमात, मोमिनात, साजिदात, आबिदात वगैरह, ठीक है जी। तो ये दो जमे आपको याद होनी चाहिए। बाकी जो जमा मुकस्सर है वो वक्त के साथ साथ आप सीखेंगे या याद करेंगे। लेकिन जमा सालिम का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसका एक उसूल है ना, तो वो आपको मालूम हो कि किस उसूल के तहत हम वो जमा बना रहे हैं। यहाँ तक की बातें वाज़ेह हैं? जी शेख। चलिए नीचे यस कुछ सर। एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक चीज एक्सप्लेन। अच्छा टाइम तो हो गया मेरा ख्याल है, कितने बजे तक थी क्लास? 7 बजे तक सर। 8 बजे तक। हाँ टाइम तो फिर हो गया है। तो चले, मैं बहरहाल फिर ये नोट्स आपसे शेयर कर देता हूँ, इसमें जो चीजें यानी मैं मजीद कुछ बताना चाह रहा था सर वो अगली आप क्लास उसमें है पढ़ 7:40 लीजिएगा। पे शुरू होनी है। अच्छा अभी टाइम है आपके पास यानी? जी जी बीच में सात ब्रेक है? चालीस पे अगली क्लास है। जी जी 7:40 टाइम अगली क्लास का। अच्छा बस फिर मुख्तसरन में से दो बातें करना चाहूंगा, वो वैसे इसमें नोट्स में लिखे हुए हैं, नोट्स में आपसे आज शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। तो एक ये कि ये जो जमा मुजक्कर सालिम है, ये तो ठीक है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ मुजक्कर के लिए आती है। यानी इस तरह से जमा मुअन्नस की नहीं यूज करते। और दूसरा जो है, ये वाली जमा सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होती है, आकिल के लिए, ठीक है। बाकी यानी बेजान चीजों के लिए या जानवरों के लिए ये वाली जमा नहीं यूज कर सकते। मिसाल के तौर पे किताब है ना, तो किताब की जमा किताबूना या किताबीना नहीं हो सकती। कलम कलमूना कलमीना जमा नहीं बना सकते। तो ये जमा सिर्फ इंसानों ही के लिए यूज होगी। जैसे जितनी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, मुस्लिमूना, सादिकूना, मुदर्रिसूना, वो किसी आदमी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें ये दो लिमिटेशंस हैं कि ये वाली जमा एक तो मुजक्कर के लिए आती है स्पेसिफिकली, मुअन्नस के लिए नहीं आएगी। और दूसरा ये कि ये जमा जो है इंसानों के लिए यूज होती है, ये बाकी चीज़ों के लिए या नॉन या बाकी जो हैं इंसानों के अलावा नॉन ह्यूमंस जितने भी हैं उनके लिए यूज नहीं करते हैं। दूसरी चीज जब हम मुअन्नस सालिम के बारे में मैं क्लियर करना चाह रहा था कि इसको बोलते तो मुअन्नस सालिम है। उसकी वजह यह है कि ज्यादातर ये अलिफ ते की जमा मुअन्नस के लिए यूज होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अलिफ ते वाली जमा हमेशा ही मुअन्नस हो। कुछ मुजक्कर लफ्ज भी ऐसे हैं जिनकी जमा हम अलिफ ते के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो मुजक्कर अल्फाज की जमा भी अलिफ ता से की जा सकती है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी लफ्ज़ में देखें कि अलिफ ता एंड पे आया है तो आप कहें कि जी ये मुअन्नस ही है, ठीक है। लेकिन अगरचे उसका नाम जमा मुअन्नस सालिम है, उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर इस पे मुअन्नस वाली जमा आती है, ठीक है। लेकिन इस पे मुजक्कर भी आ सकता है। और दूसरा इसी तरह ये वाली जो जमा है, ये इस पे ये इंसानों के लिए भी यूज हो सकती है, ये नॉन ह्यूमंस के लिए भी आ सकती है, लिविंग थिंग्स के लिए भी, नॉन लिविंग के लिए भी। तो ये जमा सबसे ज्यादा यूज होती है अरबी में,
ایون یہ اتنی زیادہ یوز ہوتی ہے کہ ہم فارسی میں اردو میں بھی یہ والی جمع استعمال کرتے ہیں، الف تا والی، کیونکہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے نا، یہ مذکر کے لیے بھی آ سکتی ہے، مؤنث کے لیے بھی، اسی طرح انسانوں کے لیے، غیر انسانوں کے لیے، تو یہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں پھر یہ والی جمع. بس یہ دو چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ میں کلیئر کر دوں. نیچے اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں، وہ پھر پڑھ لیجئے گا ہر جمع کی ایگزامپل، اور اینڈ پہ ایک ایکسرسائز گیون ہوگی تو وہ بھی اٹیمپٹ کر لیجئے گا. چلیں تو بہتر ہو گیا، بس ان باتوں کو دیکھ آئیے گا، نوٹس پہ شیئر کروں گا، یہ بھی پڑھ لیجئے گا. تو اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ نئے موضوعات شروع کریں گے، اور جو اصل میں یعنی جو نحو کے موضوعات ہیں وہ آپ سمجھیں کہ اگلے ہفتے سے شروع ہوں گے. بس اس ابھی تک جو پڑھا ہے وہ صرف کچھ تعارفی باتیں سیکھی بس.